Assalamu alaikum. So, welcome to Walaikum this salam. session. Welcome, Dr. Amir. Congratulations on successfully clearing your exam. And Sir Numan Sir, Tasneem thank you very much. Usman. So, welcome to our next session. So, as usual, so we are going to discuss at least three scenarios. So, the Dr. Amir will be an examiner, and one by one, we will be the candidate. So, first, Dr. Usman, he is going to be a candidate, and Dr. Amir is an examiner. So we are starting with the first scenario. Dr. Amir, please. All right. All right. Assalamu alaikum, everybody. So, Dr. Walaikum. Osman, can we start? Yes, sure, sir. She is. She has presented to you in the OPD with a lump 3 by 3 centimeter in the upper outer quadrant. And Okay. how would you approach this patient? Okay. First of all, I will approach the patient by taking thorough history from the patient regarding her disease, whether for how long duration this lump has been present, and what are the symptoms does it causing to the patient. Is there any single lump or also associated lumps in the axilla or anywhere else? And what are the symptoms this lump is causing? I would also ask about the symptoms of generalized body aches, constitutional symptoms like weight gain. During history, I will ask her about Weight gain or weight loss, Dr. weight, Osman? weight, lo weight loss. During history, I will Okay. also ask about her age, her marital status, her early regarding her menarche, menopause. If there is any, if she is married or not, does she have? What was the age of her first child? And is she taking any oral contraceptives pill? Any history of radiation? And after the taking thorough history, I will do the clinical examination. And with the clinical examination, I will feel the consistency of the lump. I will palpate her axilla. I will palpate her opposite breast and axilla. I will also see her Yes, okay. abdomen for On and palpation, there is 3 by 3 centimeter lump, not fixed to skin. There is no overlying ulceration, and what is the two lymph status? nodes are palpable in the Okay, two lymph then nodes are palpable in the left okay, then axilla. I will confirm the consistency of the. Then I will go for ultrasound of the breast, and I will see whether this lump is solid or cystic. And I also ultrasound of the axilla for ultrasound guided FNAC of the lump. I will also do the true cut biopsy of the lump to see whether it is benign or malignant. Uh, and I would like to know the histopathology report along with if it is any cancer, then I will also order receptor status of the to the pathologist, ERPR and HER2 receptors. And after investigation, I will like to know whether this lump is benign or malignant. Yeah, it's the lump comes out as invasive ductal carcinoma, and it's 3 by 3 centimeter in size, and ERPR is positive and HER2 negative. Okay, as ERPR is positive and it is early carcinoma breast, I will discuss this case in the multidisciplinary team or tumor board, and there are multiple options for the treatment. I will discuss these all treatments with the patient, whether she want breast conservative surgery or she want modified radical mastectomy. And as it is ERPR positive, I will give her a new adjuvant hormone therapy to downstage the tumor if she wants breast conservative surgery. And Okay, I will Dr. do Usman, the marking how do you say that it's early breast cancer? because the size of breast cancer is 3 centimeter and lymph nodes are I would like to know There whether are two lymph lymph nodes nodes. They are mated together. They are fixed. they are fixed to the skin or underlying structure, or they are just matted together. They are fixed to the underlying structures. And then it means that it is N2 stage and T2 N2 and it is no, uh, locally advanced disease.
And I will also like to see the contralateral side and supraclavicular lymph nodes if they are palpable or not. And I will discuss this patient in tumor board, and we will try to downstage the tumor before going for surgery. I will preoperatively mark the tumor with radioactive, with the mammographic stereotactic technique, and place beads in the breast, so that I would be able to know where the tumor is Okay, you after place the chemotherapy. beads and you place the beads. You will place beads in breast or in the axilla. In breast. And And what would be your management plan then for axilla? then I will uh, uh, give nothing has to be placed in axilla, and after that I will give neoadjuvant chemotherapy, and see whether the patient is a responder or not. Is she responding to after 3 cycles of chemotherapy? I will see whether it tumor, what is the status of tumor. We will reassess that whether it is responding to the chemotherapy or not. Which chemotherapy regimen you would like to give? I would like to give CMF, cyclophosphamide, methotrexate, and 5-fluorouracil, uh, and Okay. along with Okay, the you gave the 3 cycles of chemotherapy, and the breast lump has decreased in size to about 1.5 centimeter now, but the axillary lymph nodes have not responded. They okay, are then I the will same. give her advise her treatment of complete modified radical mastectomy. I will do the mastectomy along with axillary clearance to remove the axillary disease and breast disease as well. Can you offer breast conservation surgery to this patient? No, I will not offer the breast conservation surgery to this patient, because she has locally advanced disease, and she is not responding to chemotherapy. So it is better to do modified radical mastectomy in this case. Yeah, his breast tissue has responded well. But her axillary tissue mets have not responded, and it is N2 disease. So I can offer her later on breast reconstruction post-operatively for the breast tumor. I would like to cure the disease and remove it surgically. Okay, so which level axillary dissection you would prefer in this case? I will do level 2 axillary dissection. I will remove lymph nodes lateral to pectoral and posterior to pectoralis minor muscle as well. Okay, you remove the lymph nodes and 5 lymph nodes are positive. What will you do? Then I will do post-operative after wound healing 1 month. I will give her post-operative radiotherapy to the axilla to remove the microscopic mats. Okay, And thank you very much. okay. Okay, Dr. Numan, जी sir, can we proceed? okay Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. There is a 54 years old smoker, male. He has presented to your EPRI with upper abdominal pain. How would you proceed? So the patient has presented to me with upper abdominal pain. I will take history, detailed history, that history of pain since when he's having the pain, and what is the character of the pain, and what are the aggravating and relieving factors. Is there any relation to food intake? What are his urinary and bowel habits? And this all I will take in history, his past history, his drug history, his history of comorbids, any comorbid diseases, and the smoking. I will ask about how much cigarettes he's smoking for how many years. Okay, he smokes around 15 cigarettes per day, and he has occasional history of vomiting as well, and there is at times history of melena.
Okay, so my provisional diagnosis will be after listening to history and doing a thorough examination. My provisional diagnosis would likely be a peptic ulcer disease. The risk factors are smoking, and the symptoms of melena and occasional vomiting also point to this. Okay. What tests you would like to do? So I will like to first I will like to do some apart from basic investigation like blood CPA etc. hepatitis profile. I will like to get his H pylori status, and I will like to get his अपने ultrasound घर abdomen. ले चलो ना गाड़ी वहां खड़ी करके आप हमें उधर उधर उतार दो अपनी गाड़ी पे Chest X-ray as well, and later on I will like to request my gastroenterologist colleague for an upper GI endoscopy. हाँ अच्छा ठीक है इस तरह का बस सही है Should I repeat or? Okay. What investigations you would like to do? So I will like to, apart from basic investigation, I will like to get his H pylori status, H pylori serum and stool for H pylori, and I will like to get his ultrasound abdomen to see his liver, his gallbladder, his pancreas, kidneys, and I will also request for an upper GI On endoscopy from. ultrasound, gallbladder is normal and pancreas is not visible, and rest of the abdomen is filled with gases. H. pylori report will come after 3 days, and the patient is in severe abdominal pain. So I will admit the patient. I will start him with conservative. I will also like to get a chest X-ray, an erect chest X-ray, and I will interpret its findings. Yeah, one of your registrar did serum amylase, and it was more than 2 times, and chest X-ray was done. Okay, it showed so gas under diaphragm. Okay, so serum amylase is raised and chest X-ray shows free air. So my diagnosis will be a case of perforated duodenal ulcer, and I will like to operate upon this patient. I will counsel him regarding the surgery, and I will inform my anesthetist colleague and prepare the OT, and I will send his blood samples and take preferably a laparoscopic approach, diagnostic laparoscopy, and proceed to repair his perforated ulcer. You did the laparoscopy, and there is ulcer in the first part of the duodenum, around 2 by area. I will assess the the gut, and the presence of free fluid and the septic load he's yeah, carrying. there is free fluid in And, the abdominal cavity, and there is fluid in between the bowel loops, interloop space as well. So I will do a peritoneal lavage, and I will suck the leaked fluid, and then I will repair the ulcer with intracorporeal. How would you repair the ulcer? Suture. Which suture you will use? There is intracorporeal. I will use vicryl absorbable suture 2-0, and I will like to repair it with Graham's patch and omental plug. Okay. What's the difference between Graham's patch and modified Graham's patch? So in Graham's patch, we close the perforation, and then we put the piece of omentum, over it, and then we oversew it over the repaired perforation. And in modified Graham's patch, we just take the suture from the both ends of the perforation, and we put the piece of omentum in
in between the stitches over the perforation, and then we tie the suture above the patch, above the mental patch. Okay, Dr. Maan, thank you. अच्छा, इसका बताना इसमें क्या गलतियां की हैं? अच्छा नहीं, एक रहते हैं, चलो थर्ड भी कर लेते हैं ना, ठीक है? थर्ड कर लेते हैं सर, फिर उसके बाद मैं घर जाता हूँ, फिर इंशाल्लाह। हाँ, फिर उसके बाद फिर कर लेते हैं। थर्ड कहते हैं मेरी बारी है। Okay, Dr. Shafkat, how are you? I'm fine. 53 years old young male comes to you. Male comes to you with upper GI discomfort. How would you proceed? So I will take the history from the patient. So I will ask the duration of the symptoms specifically. Is this patient having a pain, and It's what is present for the last 5 years. Yeah, last 5 years. So I would like to ask the detail about the discomfort. What type of the discomfort? Is it a pain? There is And a retrosternal discomfort, and the patient at times have sour taste in his mouth, sour or bitter taste in his mouth, and he has halitosis. halitosis as well. So he's 53-year-old. So I would like to ask further questions. Is there any history of regurgitation as well? Is there any history of aspiration, nocturnal expiration associated with weight loss or not? Then is there any history of hematemesis? There is no history of weight loss and no history of hematemesis, but he has history of regurgitation. Regurgitation. So I would like to ask from the patient what treatment he is already taking, and response to the treatment, and what investigation he has already been completed. So I would like to ask these questions from the patient. And associated symptoms. Okay. He is taking medications for gastroesophageal reflux disease. How would you investigate? So then I would, in particularly in this patient, I would like to involve the gastroenterologist in this patient after doing the physical exam to just see is there any sign of pallor, jaundice. Physical examination is normal. Normal. Physical examination is normal. All right. So the next. How would you investigate? The next would be I will discuss with the gastroenterologist, and I will arrange the upper GI endoscopy for these patients, and depending upon the finding of the upper GI endoscopy, we will move forward. Okay. Any other test that you would like to do after doing the esophagoscopy? Esophagus H. pylori. H. pylori. I would like to have H. pylori, and I would like to have a chest X-ray as well to see the status of the esophagus. What the then is there any gas bubble which is visible in the stomach? So to see whether there any herniation, hiatal herniation, signs of hiatal herniation. Oh, there is no hiatal herniation. Okay. So what's the test to confirm hiatal herniation? It's number one. It's upper GI endoscopy, and then the 24-hour pH monitoring. Then I would also because these investigations will be in serial wise. So depending on the previous investigation. So the next will be the manometry as well. So I would like to see the report of the upper GI endoscopy. What are the results? It shows some evidence of reflux, and there is mild esophagitis. What do you understand? What's the normal D-master score? Sorry, I couldn't hear you. What is the normal D-master score? Normal D-master score? D-master score. Sorry. So I don't. Okay. So this patient had reflux, and he has been advised Nissen fundoplication. Can you describe how would you do it? So the Nissen fundoplication is basically done the laparoscopically. I can explain the steps of this procedure. So this is done in laparoscopically. Before that, we have to do the different tests like the 24-hour pH monitoring and the manometry as well. So it's the fundus is wrapped around the esophagus.
So there's different ways, 180-degree wrap and 360 wrap. And at the same time, we need to see whether the hiatus there is a hiatus. I am asking about Nissen fundoplication, Dr. Shafkat. Yeah, Nissen fundoplication is the fundal wrap. Do you do 180-degree wrap in Nissen fundoplication? It's I think it's a complete wrap. But I don't do these procedures. These procedures are most of the time they are done by the upper GI surgeons. So I don't have the experience, but just I can explain the steps. Okay, well, what are the important steps or important constituents of this procedure? So the first is the medical treatment. So if the medical treatment has been failed, I am asking specifically about Nissen fundoplication. Nissen fundoplication. So this procedure is done laparoscopically, and once we enter into the after creating the pneumoperitoneum, so we need to see the hiatal opening. Is there any widening? We need to reconstruct the hiatus as well, and afterwards, so the gastric fundus, it's rotated with the help of we need to apply the sutures laparoscopically, intracorporeal suturing. So the wrap is rotated around the gastroesophageal junction. Okay, so which suture you would use for the crural tightening and which suture you will use for the wrap? For the crural tightening, the suture is used. It's a PDS, and for the fundal wrap, it's the Vicryl 20. PDS and Vicryl. Yeah. Okay. So, thank you, Dr. Shafkat. Okay. G. Now it's the feedback session. अब आपने जी सर बेसिकली ये वेरी वेल डन सर एवरीबॉडी बस ये है कि थोड़ा सा जो है इसमें जो चीजें आप मिस करेंगे उस पर फिर आपको वो पकड़ लेगा। अब जैसे उस्मान ने खुद ही से लिम्फ नोड का मुझसे नहीं पूछा कि ये फिक्स्ड है या मेटेड है। मैंने से कहा कि जी एक्सिलरी लिम्फ नोड्स पैल्पेबल हैं। एक्सिलरी लिम्फ नोड्स अगर पैल्पेबल हैं तो उसकी अल्ट्रासाउंड करा के फिर आपने एफएनए भी करानी है। एफएनए जो है वो नहीं कराई तो वो एफएनए कराएं और बाकी जो है फिर ये है कि इसकी एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन होगी और साथ जो है बीसीएस जो है वो यानी अगर एक्सिलरी लिम्फ नोड पैल्पेबल आ गई तो साथ ही फिर आपने न्यू एडजुवेंट पे चले जाना है। न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी होगी और फिर उसके बाद इसकी बीसीएस भी हो सकती है अगर रिस्पॉन्ड करता है और अगर नहीं है तो फिर उसमें वो भी हो सकती है। तो ये बेसिकली ये है कि अपने सिनेरियो को थोड़ा सा इसने बहुत मुश्किल बनाया जब इसने वो नहीं किया तो वरना ये सीधा सीधा अर्ली ब्रेस्ट कैंसर का सिनेरियो था। तो अर्ली ब्रेस्ट कैंसर में कीमो का डिसीजन ये खुद तो ना लेना। कीमो का डिसीजन तो कहीं मैं ऑन्कोलॉजिस्ट पे छोड़ता हूँ या टीम पे छोड़ता हूँ। जी बेसिकली ट्यूमर बोर्ड से बातचीत करे और ट्यूमर बोर्ड के साथ ही जो है ना वो सर वो तो मैंने बात की थी, वो तो मैंने कहा था कि ट्यूमर बोर्ड में लेके जाएंगे। जी 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 आपने कहा बिल्कुल। लेकिन मतलब ये है कि जो आप अगर मैं कीमोथेरेपी का भी वो पूछता हूँ तो फिर आपने कहना जी मैंने जो है ना वो कीमो ऑन्कोलॉजिस्ट से डिस्कस करूंगा। ठीक है फिर उसके बाद आप जो है ना वो कह सकते हैं कि जी सीएमएफ रेजिमेंट होता है, सीएएफ रेजिमेंट होता है, लेकिन जो है मैं ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ बात करूंगा। अच्छा ये बताएं कि अब इस तरह इसमें मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टोमी ब्रेस्ट कंजर्वेशन, अब जब एक्सिला में लिम्फ नोड आ गए तो ब्रेस्ट कंजर्वेशन हो सकती है नहीं हो सकती? मेरा तो नहीं ख्याल कि हो सकती है। देखिए ब्रेस्ट का कंजर्वेशन का तो ताल्लुक उसके साथ है ना, क्या नाम है, जो एक्सिलरी उसके साथ तो उतना नहीं है जितना ब्रेस्ट के ट्यूमर के साथ है। ब्रेस्ट का ट्यूमर अगर इस तरह का है कि वो तो T2 है, तो T2 में जो है और फिर ये डाउन स्टेज होके अगर आप बेले में पढ़े तो वो इसकी डाउन स्टेजिंग की लिखी हुई है कि जी डाउन स्टेजिंग जो है that is an indication, down staging of axilla, it's an indication for neoadjuvant chemotherapy so that later on we can do PCS. तो इवन अगर वो नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा तो एक्सिलरी डिजीज को आप उससे रिमूव भी कर सकते हैं सर्जरी के साथ, और ब्रेस्ट में आपने 1 सेंटीमीटर का मार्जिन लेके तो निकाल सकते हैं उसको भी, लंप को भी।
तो बाद में रेडियोथेरेपी देते हैं उसको भी। तो अच्छा था, बीच में आप थोड़ा सा जो है वो कॉन्फिडेंस, क्योंकि जब मैंने वो आपको फिक्स्ड वाला उसमें डाल दिया तो आपने थोड़ा सा उसको अपने आपका कॉन्फिडेंस लग रहा था कि जी शेक हो गया, तो वो थोड़ा सा पक्का रहे, इसमें कोई ऐसी बातचीत नहीं है। तो थोड़ा अच्छा माशाल्लाह, ओवरऑल जो था इट वाज गुड। दूसरा तो उस्मान, तुमने बाकी मेटास्टेटिक वर्कअप कराया था? हाँ सर, वो तो एब्डोमेन का भी बताया ना कि एब्डोमेन पैल्पेट भी करेंगे। अभी बता ही रहा था कि सर ने स्विच कर दिया कि ना नहीं, कि ये इन्वेस्टिगेशन हिस्ट्री में मैंने पूछ इन्वेस्टिगेशन लिया में कि भी बताना। हाँ वो हाँ बताना बताएं। चाहिए कि जो है ना मेटास्टेटिक वर्कअप, और इसमें उसमें जो है ना अल्ट्रासाउंड। जी मैं आप बायोप्सी में आप कहें कि जी आई वुड send biopsy for histopath ER PR and a HER2 new status if बट ना लगाएं कि जी if it is malignant। माशाल्लाह ठीक था। बाकी सिरे पे गए हिस्ट्री जो है वो उसको अपर एब्डोमिनल पेन को सीवियर स्मोकर के साथ जो है आपने सही आइडेंटिफाई किया कि वो गैस्ट्रिक अल्सर है या ड्यूडेनल अल्सर है। उसके बाद फिर आगे जो है ना वो है। बाकी लेप्रोस्कोपी पे बेशक ना जाएं, ओपन की बात कर लें ठीक कि है। जी अगर मिनिमल सालिंग है तो फिर आप लेप्रोस्कोपी के लिए कर सकते हैं। बाकी ड्यूडेनम वाला थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो ओपन में भी जो है ना वो आपसे ये स्टेप्स बेसिकली उसने मुझसे ये सूचर भी पूछे थे, स्टेप्स भी थोड़े से पूछे थे। बाकी इसमें जो है ना जो सर शफकत जो है वो बताएंगे। ग्राम पैच जो है ना वो है कि जिसमें आप मोमेंटम को सिर्फ बांध देते हैं साथ, परफोरेशन को अच्छा, प्राइमरीली क्लोज नहीं करते। और ठीक जो है। मॉडिफाइड ग्राम्स पैच है उसमें यह है कि आप पहले परफोरेशन प्राइमरीली क्लोज करते हैं और फिर उसके बाद ऊपर मोमेंटम को टाई करते हैं। अच्छा, मतलब मैं उल्टा बोल गया तो हूँ। जी सर, ये थोड़ा सा मेरे ख्याल उल्टा हो गया। ठीक है, अच्छा, ठीक है। और जो है सर बाकी ये है कि सीवियर पेन के साथ आ रहा है तो आप फौरन एच पाइलोराई पे ना जाएं, पहले कोई और वाली इन्वेस्टिगेशंस करा लें जो इमरजेंसी सिचुएशंस को रूल आउट कर सकती हैं। इस सब फिगर्स को देख लें, उसकी परफोरेशन हो सकती है, स्टमक की परफोरेशन, ड्यूडेनल परफोरेशन, पैक्रेटाइटिस। तो इमरजेंसीज को पहले रूल आउट कर लें, गॉल ब्लैडर वगैरह और इसको ना, ठीक तो है। ये जरूर करें। और माइलेज जरूर कराएं, ईसीजी करा लें। हाँ, और ये इसीलिए। जो इमरजेंसी है ना, ईसीजी बिल्कुल। नमोनिया को, परफोरेशन को, इसोफेजियल परफोरेशन, ये देख लें। अच्छा सर, और बाकी जो है बाकी ठीक है आपका वो। सर वाइकल 20 ही करते हैं ना? जी सर, वाइक्रल 20 ही मैंने उससे बताया था और मेरा ख्याल है कि वो ठीक ठाक है। बाकी इसमें मैंने एक आध दफा वैसे मैंने जब देखा तो मैं भी थोड़ा सा उसमें बता तो मैंने यही दिया था। बाद में मैंने देखा तो सिल्क वगैरह का भी लिखा हुआ था कि जी नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर और सिल्क के साथ भी। तो इसको जरा देख लीजिएगा सर, ये जो 20 है। ही है सर, आप ठीक कह रहे हैं। वो मैंने पढ़ा हुआ डुडले में लिखा हुआ 20, बड़ा क्लियर कट। अच्छा, अच्छा। क्योंकि हम लोग तो यही ये 20 लोग ही कर पीडीएस रहे वाला होते हैं। तो नहीं यूज करते ना? नहीं नहीं सर, पीडीएस नहीं, पीडीएस तो कट हाँ। थ्रू कर देता है। पीडीएस तो प्रोलीन की तरह बिहेव करता है। अच्छा, और ठीक। वो मोनोफिलामेंट है ना, पीडीएस तो मोनोफिलामेंट है। वो तो वैसे भी टिश्यू बड़ा फ्राइबल होता है, इसीलिए हाँ, तो इसीलिए मोनोफिलामेंट वैसे उसके हिसाब से बेहतर है, लेकिन ये वाइक्रल जो है ना, देखने वाइक्रल इसकी मेरे ख्याल वो लिखा ये हुआ है बाकी इसीलिए जगह। इसीलिए इसमें सिल्क भी इसीलिए यूज करते हैं कि इसकी नॉट सिक्योरिटी अच्छी होती है। ठीक है। ठीक है, वो जो ठीक पीडीएस है। या प्रोलीन है ना, वो इतना वो होता है, उसको जहां भी यूज करना है ना, जहां पे आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए और लंबे अरसे के लिए चाहिए, ठीक जिस है। तरह क्रूरा को ठीक हो रिपेयर गया। करने के लिए पीडीएस यूज करते हैं या प्रोलीन यूज करते हैं ना। ठीक हो गया। ठीक हो गया जी। अच्छा सर, बाकी सर शफकत आपका जो है वो ये इसकी गर्ड की जो है वो आपको पता होना चाहिए कि ये 3 इन्वेस्टिगेशन जो है आप, एंडोस्कोपी, मैनोमेट्री और क्या कहते हैं जो ये पीएच 24 आवर मॉनिटरिंग है, 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग। 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग, ये तीनों चीजें पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो है वो डी मिस्टर स्कोर का आइडिया होना चाहिए। 14.7 जो है ना, उससे नीचे नीचे जो है वो नॉर्मल है, उससे ज्यादा एबनॉर्मल है। उसमें कोई 5-6 इंडिकेटर्स हैं। स्कोर तो कौन से वो वाले बस ये मोटा ये मोटा आपको मोटा कहाँ पे लिखा मोटा हुआ है? पता हो आपको।
तो उसके अलावा जो है सर बाकी जो है इसके 3 कंपोनेंट हैं सर, जो ये गर्ड की सर्जरी है ना, इसमें एक तो इंट्रा एब्डोमिनल जो है वो इसोफेगस की लेंथ जो है वो रिस्टोर करनी होती है, फिर उसके बाद क्रूरल टाइटनिंग करनी होती है, और तीसरा कंपोनेंट होता है सर इसका जो जो रैप देना होता है। तो जब निसन कह दिया तो निसन में 180 डिग्री और 360 नहीं है, वो निसन में 360 डिग्री रैप है। निसन सर, निसन, हाँ सर शफकत, निसन जो है ना वो पूरा 360 डिग्री रैप है। वो जो बाकी वो वन, पार्शियल जो हाँ है ना वो उसमें इंटीरियर डोर है और पोस्टीरियर टूपे है। जी सर, वो जो तो पार्शियल है ना वो डोर और टू पे है, एंटीरियर डोर हाँ और वो पार्शियल टू 180, पे। हाँ तो वो है, वो आपने याद रखना है। निसन का मतलब है कि 360 डिग्री है, और निसन को जो है ये आमतौर पे उसमें नहीं करते जो अल्लाह आपका भला करे, जो ये एकलेजिया वाली इसोफेगस है उसमें, और उसकी वजह ये होती है कि वो फिर बिल्कुल उसमें होता है कि डिस्फेजिया होने का चांस होता है। तो ये आपको पता हो। बाकी उसने सूचर पूछे थे, तो ये जो क्रूरल टाइटनिंग है सर, ये नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर के साथ होती है, नॉन के साथ। तो दूसरा जो है इस पे पीडीएस लगा सकते हैं, इसके ऊपर भी वैसे जो है रैप के लिए भी लोग परलीन वगैरह भी यूज करते हैं। तो ये सूचर जो है ना सर देख लीजिएगा, ये इसने दोनों दोनों दो उसमें ना मुझसे सूचर पूछे थे कि जी डिओडेनम रिपेयर करने के लिए कौन सा सूचर देखेंगे, और बाकी उसके लिए कौन सा सूचर देखेंगे गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में। तो वो दोनों के लिए इसने वो पूछा था। तो ये सर ऑपरेशन के स्टेप्स भी थोड़े से सर देख लें, जो बीच में ना कुछ ऑपरेशन जो है ये पूछ सकते हैं। और वो बड़ा अच्छा आप बीच में कहते होते थे कि जी आपका ही फिक्रा मैंने इस्तेमाल किया कि भाई आई डू नॉट परफॉर्म दिस सर्जरी बट आई कैन नरेट द स्टेप्स। आज आपने वो नहीं कहा। बोला था कि मैं नहीं करता इसको ना, ये तो अपर ये सर्जन जो ना बेसिकली करते हैं ना, तो मैंने मैंने एक्सपीरियंस तो नहीं है जी मेरा, जी सर, बस हाँ, बट आई बेसिकली कैन। आपको यही कहना चाहिए था कि जी दिस इज डन बाय अपर जीआई सर्जन्स इन रूटीन बट आई कैन नरेट द स्टेप्स, इस तरह करके। तो सर बाकी जबरदस्त हो गया माशाल्लाह, आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया है। और थोड़ा सा बस वही है कि ये और थोड़ा सा रिफाइन करें, बीच में ये वो नहीं करनी, जो चीजें छोड़े नहीं, हाँ, अब ये ना ताकि ये जो तुम्हारे बाकी सिनेरियोज है ना, वो डेली जो ना इस तरह करें कि एक एक करके ना एक एक हमसे सिनेरियो जो ना वो पूछ रहे हैं, तो उससे ये कि हो जाएगी, एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी बोलने की, और जो चीजें मिस कर जाते हैं ताकि वो हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। जी सर, बस वही है कि जो भी वो सिम्टम बताता है ना, बस उसमें मोटी मोटी जो चीजें हो सकती हैं वो आपने पहले बतानी है। फिर उसके बाद जो है बेशक डिफरेंशियल बता दें 2-3, और फिर उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है या बाकी चीजें हैं वो सर कर लें। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो ठीक हो गया, गया, ठीक है ठीक हो सर। गया। तो चलिए, तो सर मेरी बैटरी कभी कम हो रही है, फिर हाँ, इंशाल्लाह नहीं, थैंक यू कल आमिर फिर भाई, आप लोग। थैंक यू सो ओके मच, सर, ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके सर, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ठीक है, हेलो। जी सर। चलो बस समराइज कर दे यार जल्दी से। हाँ, आज के तो 3 हो गए सब जो सिनेरियोज है ना, 3 सिनेरियो हो गए। अच्छा, अच्छा इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहता हूँ, ये जो है ना सिनेरियो जिसमें ये निसन फंडोप्लाइकेशन, और इसमें ना स्टेप्स लिखे हुए हैं। किस किस वाले में है? अ, सर ये है इसोफेगस वाले चैप्टर में, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, बेले में, किसका? बेले एंड लव में, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में। ठीक है। इसमें तस्वीर बनी हुई है सारी फंडोप्लाइकेशंस की। हम्म, ठीक है सर, इसके जो 3 प्रिंसिपल ऑफ सर्जरी वो ये हैं, क्योंकि ये डायफ्रैग्मेटिक हर्निया की वजह से होता है ना, रिडक्शन ऑफ हर्निया फर्स्ट स्टेप है, देन इज लेंथनिंग ऑफ इसोफेगस, ठीक है, उसके बाद क्रूरल रिपेयर एंड फॉलोड बाय रैप। ये 4 स्टेप्स हैं इसके। ठीक है सर, जो सर आमिर बता रहे थे ना, तो इसमें कम से कम इसोफेगस की ना 3 से इंट्राब्डोमिनल लेंथ जो है ना 3 से 4 सेंटीमीटर इसोफेगस की अचीव करनी होती है।
और इसमें जितना स्ट्रॉन्ग सबसे जो गोल्ड स्टैंडर्ड ऑपरेशन है ना फॉर रिफ्लक्स, इट इज निसन फंडोप्लाइकेशन, जिसमें 360 डिग्री का लपेटा दे दें पूरा ऑल अराउंड इसोफेगस यू कवर। इसोफेगस की जो वो है ना फंडस, फंडस को पूरा रैप कर देते हैं। जितना स्ट्रॉन्ग प्रोसीजर रिफ्लक्स के लिए होता है उतना उसका डिस्फेजिया ज्यादा होता है। ठीक है सर, मतलब आपने रिफ्लक्स कंट्रोल किया तो डिस्फेजिया कर दिया। इसीलिए इसकी मॉडिफिकेशंस आई थी बाद में, जो एक फ्लॉपी निसन की टेक्निक इस्तेमाल करते थे। कि इसमें ये भी एक दफा मेरे से किसी ने वाइवे में पूछा था कि आप ना कितना उसमें टाइट करेंगे इसको डिस्फेजिया से बचाने के लिए। इसमें सर 12 की या 10 की ना बूजी डालते हैं पहले। मतलब आपने रैप किया ना, उसको टाइट कितना करना है उसका अराउंड द एसोफेगस। ठीक है सर, ताकि बाद में डिस्फेजिया भी ना बड़ी जो है ना शदीद किस्म की इसमें, और गैस ब्लोट, इसकी दो बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। गैस ब्लोट ब्लोट सिंड्रोम, जिसमें जो है ना इसमें पेशेंट को ना बड़ी डिस्टेंशन हो जाती है पेट में। इसीलिए इसकी मॉडिफिकेशन बाद में आई कि ना उन्होंने कहा आप पार्शियल रैप करें, टोटल रैप ना करें। फिर कुछ लोगों ने आगे से रैप किया तो उसको इन्होंने कहा कि ये रैप है डॉर, हेलन डॉर। और कुछ लोगों ने पीछे से रैप किया तो उसको उन्होंने टू पे। ये सारी तस्वीरें ना सर बेल एंड लव में बनी हुई है रिफ्लक्स वाले चैप्टर में। तो इनमें तीनों प्रोसीजर में से आप कोई भी कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो है ना वही है निसन्स वाला। ठीक हो गया सर। तो लेप्रोस्कोपिकली भी करते हैं और ये ओपन भी करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ओपन वाली बात करें तो जैसा सर आमिर कह रहे थे ना, लेप्रोस्कोपिकली ना अभी अभी मैंने एक दफा प्रोसीजर होते हुए देखा, लेप्रोस्कोपी सर फरहान मजीद कर रहे थे, और किसी को ये करते देखा नहीं बाद में। वो तो वहां पे नहीं है ना, देखिए वो तो यहाँ पे तो लेप्रोस्कोपी के लिए करते हैं ना, वो तो नहीं ओपन ओपन करके। हम्म। ये जो ये वाली तो सर्जरी है रिफ्लक्स की। एक ये हो गया, हम्म, और इसमें हर्निया की रिपेयर। आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ, तो ये इसके 4 स्टेप्स हैं, ये बेल एंड लव में सर दिया हुआ है सारा, ये इसको देख लीजिएगा सर। ठीक होगा, ठीक होगा। और इसके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है ना, जो एमसीक्यूज में पूछते हैं, वो मैनोमेट्री है। हम्म हम्म मतलब क्योंकि और इसोफेगो सॉरी मैनोमेट्री कह रहा हूँ, ये अपर जी एंडोस्कोपी और 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग रिफ्लक्स के लिए। हम्म। तो सर नुमान आप मैनोमेट्री कुछ ऐड किसके करना लिए? चाहते? मैनोमेट्री एक्लेजिया के लिए या किसके लिए है मैनोमेट्री मैनोमेट्री जो है? एक्लेजिया के लिए है। ठीक है। बेसिकली मैनोमेट्री ना सारे जो मोटिलिटी डिसऑर्डर है ना, जिसमें फेगस के मुख्तलिफ जगह पे ना वो प्रेशर मेजर करते हैं, और वो जो है ना फिर आपको पता चलता है कि इसोफेगस का एक्चुअल प्रॉब्लम किस जगह पे है एक्लेजिया में। क्योंकि मायोटमी करनी है ना, मायोटमी, तो मायोटमी अगर डिफ्यूज इसोफेजल स्पैज्म है या नट क्रैकर इसोफेगस है तो उसमें मायोटमी का कोई खास फायदा नहीं है। उसमें दवाइयां देनी होती हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और नाइट्रेट्स वगैरह। तो उसके लिए मैनोमेट्री है। रिफ्लक्स के लिए जो है ना गोल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है ना इसोफेगोस्कोपी, और जो है ये 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग है। और साथ इसके साथ लाजमी ये भी करना होता है, ये जो बेरियम स्टडीज होती हैं इसकी, देखने के लिए उसको। हम्म। तीन सिनेरियो बाद चल यार बस करें। हाँ, तो कल का इसी को आमिर को ही कहेंगे, यही सिनेरियो दिया है। आमिर को ये एक, आवाज सर कम आ रही थोड़ी सी आपकी। मैं ये कह रहा हूँ कल जो है ना आमिर से तीन सिनेरियोज में ना, कल जो है ना जी अपने वही जो एग्जाम से उससे पूछे गए थे वही हमसे एक एक करके वो पूछे। ठीक है। ठीक है ना?
और आप कुछ मेरे सिनेरियो में कुछ बेहतर ऐड करना, मशवरा देना चाहेंगे सर थोड़ा सा? ठीक है, उसमें यह है कि आप स्टार्ट करते हैं ना, तो आप आंसर करते हुए एग्जामिनर को एक ही गो में सब कुछ नहीं बताना, ठीक है, हम्म थोड़ा थोड़ा करके, और हम्म आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनर, उसकी फाइंडिंग पूछें, फिर उसके प्रोसीड करें। ठीक। और जो चीज मतलब आपने खुद नहीं करनी, वो उस पर ये रखें कि जी ये किसने कीमो, जैसा पहले बताया कि कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी ये हम्म ऑन्कोलॉजिस्ट का डिसीजन है कि उन्होंने देनी है, नहीं हम्म उनका डिसीजन होगा, लेकिन लाइकली है हम्म कि वो ये वाला डिसीजन होगा। हम्म, हम्म, ठीक तो है। ये है, बाकी तो ठीक है, उसी तरह हिस्ट्री से गए सारा, उसका एग्जामिनेशन बाकी चीजें ठीक थी, लेकिन मेरा ख्याल ये मुझे थोड़ा सा लगा था कि इसको एक गो में जो है ना बहुत वो नहीं, तो आप गिव द आंसर, शॉर्ट आंसर, हम्म, ठीक है। ठीक है। सर नुमान, आप कुछ बताएंगे इस बारे में? नहीं, यही बातें थी जो रिपीट कर दी शफकत ने कि ठीक है, बाकी तो यही है। मेटास्टेटिक वर्कअप शायद तूने नहीं बताया था, वो इन्वेस्टिगेशन उसकी मतलब जिक्र कर दे कम से कम। हम्म, और बाकी ये है कि कीमोथेरेपी वगैरह मेरा ख्याल है खुद बताने की जरूरत नहीं है उनको, कोई ये डिसीजन उनका है, ये हमारा सही। डिसीजन नहीं है कि कीमो देनी है, न्यू एडजुवेंट देनी है नहीं देनी, ये तो आमतौर पे हम डिसीजन लेते भी नहीं है ना, ये तो ऑन्कोलॉजिस्ट डिसीजन लेता हम्म, है। और बाकी ठीक है, ब्रेस्ट कंजर्वेशन अगर यंग खातून है ऑफर करनी चाहिए, अगर ट्यूमर सही है। छोटा है, नहीं, और एज कम्पेयर टू वो ब्रेस्ट सिर्फ सिस्ट। और सिर्फ जो आप न्यू एडवेंट के बाद, वंस वी हैव स्टार्टेड न्यू एडवेंट कीमोथेरेपी, तो देयर इज ओनली वन इंडिकेशन कि टू बिगिन विद इट्स इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा, ठीक है, हम्म, और इट्स T4 है, ठीक है, स्किन ठीक की है। इन्वॉल्वमेंट, चेस्ट वॉल की इन्वॉल्वमेंट है, चेस्ट वॉल की, हम्म तो उसमें है कि एमआरएम है, इवन कंप्लीट रिस्पॉन्स जो कुछ भी हो जाए वो हम्म, उसमें आपकी एमआरएम है। अदरवाइज जो बाकी सब में आपको उसको बीसीएस के लिए आपको 1 सेंटीमीटर का मार्जिन चाहिए, बस दैट, ऑफर कर सकते हैं। हम बिल्कुल कर, वो है बिल्कुल रिक्वायर, और दोनों की बीसीएस वर्सेस एमआरएम सेम ही, इसकी सर्वाइवल बाकी सब जो जितने रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स अच्छा, हैं। अगर वो पूछे कि जो है ना पेशेंट का डिसीजन, वो कहे कि आपने डिसीजन लेना, तो आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि एमआरएम करनी चाहिए या बीसीएस करनी अच्छा, चाहिए? अगेन इट डिपेंड्स अपॉन कि उसकी आपने देखना है कि यू नीड टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द पेशेंट, क्योंकि रेडियोथेरेपी इज अ मस्ट, ठीक है, फॉलो अप इज हम्म मस्ट, तो उसकी वो हम्म देखना कंट्रा इंडिकेशन फॉर द रेडियोथेरेपी है कि नहीं है, प्रीवियस उसको रेडिएशन पे दी हुई है, कोई कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, तो देन दैट्स द कंट्रा हम्म, इंडिकेशन फॉर द रेडियोथेरेपी, ठीक है। हाँ। और अच्छा, फिर आपने दूसरा ये। पेशेंट से करना है कि एक दफा मार्जिन पॉजिटिव आएगा, दोबारा फिर री एक्सीएन करनी पड़ सकती है, हम्म, ठीक है। ठीक है। और दूसरा ये बताएं कि जब एक्जिला में आ जाता है, तो एक्जिला को तो जिस तरह ब्रेस्ट में मार्कर डालते हैं, एक्जिला में तो मार्कर नहीं डालते ना। एक्जिला तो कोई मार्कर शार्कर नहीं, बस आपने उसको देख लिया। एक्जिला क्लियरेंस, सर मेरे मेरे से पूछा कि एक्जिला में मार्कर डालेंगे या नहीं डालेंगे? कहीं तो जिक्र पड़ा है आपने मार्कर तो, मार्क एक्जिला के मार्कर्स का? एक्सिला का मार्कर में ये होता है कि जी लिम्फ नोड बाद में आपने सेंट्रल लिम्फ नोड ये बाकी ना दे तो उस पर मेल्ट हो गया, तो उस सूरत में होता है हम्म कि जी आप उसके, मेरे ख्याल मैंने, अब आई एम नॉट श्योर कि उसने कुछ ने दिया कि आपने लिम्फ नोड उसने जो कीमोथेरेपी स्टार्ट करने से पहले आप हम्म, उसको वो कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर आप उसी लिम्फ नोड को निकालते हैं जब आपने कीमोथेरेपी कंप्लीट हो गई हुई है ना, तो वो, लेकिन ये मेरे ख्याल है लिम्फ नोड इन्वॉल्व है तो बेहतर होगा कि लिम्फ क्लियरेंस जो है ना, आई थिंक दैट इज द बेस्ट आंसर। हाँ, क्लियरेंस करनी है ना। लिम्फ नोड पेल्पेबल लिम्फ नोड है, तो क्लियरेंस करनी और करनी है दूसरे जब आपको। आए हिस्टोपैथ है, हिस्टोपैथ के उसके आंसर पूछे, उससे पूछें हिस्टोपैथ की रिपोर्ट हाँ। बताएं जी, व्हाट इज द और साइज। हिस्टोपैथ में अगर अगर 3 से ज्यादा लिम्फ नोड हो, और तो उसमें रेडियोथेरेपी एक्जिला को भी देनी है। 3 लिम्फ नोड नहीं, पहले ये पूछे टोटल लिम्फ नोड कितने निकले हैं, उसमें से कितने इन्वॉल्व है। वही 5 बताया ना, 5 अगर इन्वॉल्व नहीं, है। 5 तो इन्वॉल्व है, टोटल कितने लिम्फ नोड थे। ठीक है। टोटल वैसे 12-14 निकलते हैं मेरा ख्याल है। निकलते नहीं, वो तो निकालने वाले के ऊपर डिपेंड करता है ना, कितनी आपने अच्छी क्लियरेंस की हुई है ना, हाँ, ठीक है। तो वो तो और आप, निकलते 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 नहीं, वो कितने? तो, नो, इट्स दैट डिपेंड्स अपॉन द क्लियरेंस कि कितनी एडिक्वेट क्लियरेंस हुई हुई है, ठीक है। ठीक है। वो तो उसके ऊपर डिपेंड है, वो तो सर्जन के ऊपर डिपेंड करता है कितनी अच्छी जो आपने लिम्फ नोड निकालने हैं भेजेंगे तो हिस्टोपैथोलॉजी उसमें से काउंट करेगा ना, हम्म तो एडिक्वेट वैसे जो नॉर्मली कितने अच्छे अच्छे कितने 10 होते हैं, क्या होने डेफिनेशन? चाहिए, मिनिमम 10 होने मिनिमम चाहिए, 10 होने चाहिए, मिनिमम 10 होने चाहिए। हाँ बिल्कुल। ठीक
ठीक एक है। नॉर्मल लेवल 2 में वैसे मैंने देखे 20-25 निकलते हैं। हाँ निकलते हैं, लेकिन एक जो एडिक्वेट कहते हैं एक्सिलरी क्लियरेंस वो 10 लिम्फ नोड हो तो उसको कहते हैं एडिक्वेट है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये इसमें ना बीसीएस ब्रेस्ट कंजर्वेशन में हमेशा एक्जिला में सेपरेट इंसिजन से जाते हैं, उस इंसिजन से हाँ नहीं जाते, बिल्कुल। हाँ वो तो सेपरेट से जाएंगे वो तो, सेपरेट से जाते हैं। मतलब ब्रेस्ट बिल्कुल। का अलग इंसियन। अच्छा, जो एक ब्रेस्ट कंजर्वेशन में ब्रेस्ट का इंसियन निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स को निकालना होता है ना उसमें? नहीं नहीं, क्यों इसका निकालना? नहीं नहीं, प्रिजर्व देखिए करना है, प्रिजर्व। वो क्यों होना है, वो तो देखिए आपने वही जहाँ पे ट्यूमर है उसके ऊपर इंसियन आएगा। हाँ ठीक है। बल्कि निपल एरियोला की इन्वॉल्वमेंट तो रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है, सेंट्रल हाँ ट्यूमर ठीक है, मतलब जो है निपल ना, एरियोला के करीब है तो वो तो 2 सेंटीमीटर के अंदर अंदर है तो वो कॉन्ट्रा वो एक इंडिकेशन है रिलेटिव उसकी। कॉन्ट्राइंडिकेशन, एक रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है बीसीएस। हम्म। ठीक है। और दूसरा, जब ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी की आई है तो फिर बेहतर है कि ब्रेस्ट सर्जन को इन्वॉल्व करें। हाँ है हाँ हाँ बिल्कुल। ये बीसीएस करनी है बल्कि तो फिर एमआरएम भी ब्रेस्ट सर्जन के बारे में मारेंगे यार। हाँ ठीक है ना, तो ठीक है। तो ये हो गया। और बाकी कि मेरे भाई कि जो रिस्पॉन्स उसका बाकी जो था ना, ये जो अपर जीआई जो बेसिकली ये रिफ्लक्स वाले तो हम बेसिकली सर्जरी करते नहीं है। हाँ, लेकिन ये चीजें पढ़ लेनी चाहिए, डीमिस्टर स्कोर वगैरह, और ये पढ़ हाँ लेनी चाहिए अब चीजें। ये वाला स्कोर जो है ना, ये मैंने नहीं, पता नहीं, आई डोंट नो, ये कुछ बेले में तो नहीं लिखा हुआ। और ये वैसे भी चूंकि रिफ्लक्स वाली सर्जरी क्योंकि हम परफॉर्म नहीं करते, और फिर उस हिसाब से फिर इसको इतना वो करते भी नहीं है ना, तो ज्यादा इसको लिफ्ट भी नहीं गिराती। बस ये जितने सवाल इसने पूछे हैं इतने ही पूछेगा, अगर पूछेगा भी तो ये पढ़ लेते हैं। हाँ ठीक है, ठीक होगा सर। तो चलें सर, हम आज हम 3 सिनेरियो हो गए हमारे। पहला स्टार्टिंग विद सीए ब्रेस्ट, जो उसकी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट और बीसीएस वर्सेस एमआरएम की सारी डिस्कशन होगी। और सेकंड जो आपका फिर अगेन परफोरेटेड ड्यूरल अल्सर। और थर्ड जो था जो रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस वाला विद हाइड्रस हर्निया, तो वो कंप्लीट हो गया आज। तो 3 सिनेरियो हो गए। तो कल का फिर मेरे ख्याल हम यही रखते हैं, आमिर से ही कहेंगे और वही 3 हाँ सिनेरियो। सही है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है तो यार। चलें। ओके सर। थैंक यू ओके। सो मच। सलाम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़, सी यू अगेन।